So now we go to the other book, The Miracles of Your Mind. And the anniversary girl is reading for us, Pallavi from Good Bangalore. morning, And ma'am. good Good morning, morning. all of Wish you. you a very happy anniversary again from all of us, from all our groups and from the YouTube viewers to the beautiful Pallavi. Thank you so much, ma'am. Thank you for all your love and blessings. Okay, so we are reading this chapter on getting the inner guidance system. So हमको ये पता नहीं है, हम बहुत परेशान होते हैं कभी कभी किसी चीज को लेके, तो हमारे अंदर एक इनर गाइडेंस सिस्टम होता है जो हमारा जीपीएस है, हमारा सब कुछ है, हमारा ट्रैकर है, हमें डेस्टिनेशन बता सकता है, हमें हर समस्या का हल दे सकता है. इट इज अ सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, बट हम कनेक्टेड नहीं है शायद अभी, है ना. तो मैं दूसरे चैप्टर में भी उसी की बात कर रही थी, that need to be connected to that force within you, that God within you, that angel within you, to that Vaheguru within you, whatever you can call. It is that one power of the universe which is inside you. उनसे बात करना, उनसे कनेक्ट होना, तरीका यही होता है जब आप पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में होते हो. कल एग्जांपल दिया था, दैट गाय हु वाज शेविंग एंड ही गॉट द आंसर टू द प्रॉब्लम, जो उसने एक रात पहले यूनिवर्स को कहा था और ये कहा था दैट आई एम सरेंडरिंग दिस टू यू and I turn my request to my deeper mind and I know it has the answer and I will get it, है ना. So उसने पहले ही बोल दिया था that I know that my deeper mind, my subconscious mind has the answer to this and I'm looking for an answer. I know that it has the answer. ओके इस तरह से उसने पूछा. तो उस वक्त तो आंसर सुबह सुबह तो नहीं मिला, पर जब वो शेव कर रहे थे, क्योंकि उनका दिमाग उस वक्त पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में था, मतलब रेस्ट एंड रिलैक्स था, तब उनको वो जवाब मिल गया क्रिस्टल क्लियर. ठीक है, बस हमने कल इतना ही पढ़ा था. नाउ विल रीड फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर. In the first chapter, we told you that the subconscious mind will awake you at 6 in the morning because you are thinking about 6 o'clock in the morning before you go to sleep. In the same manner, the subconscious mind took up his case, having the superior wisdom. It logically deduces the perfect answer and gives it to him. You will often note that immediately after awakening, the answer will come to you because you are still half asleep and half awake. There is an outcropping of the wisdom of subconscious mind at that time. When you are best with a problem, what to do? What do you do? Many people, पल्लवी, व्हेन यू आर बिसेट विद अ प्रॉब्लम, यानी कि अगर आपकी जिंदगी में कभी प्रॉब्लम आती है तो वो ना ऑपोजिट मीनिंग आ रहा है. बेस्ट आपने बोला था. sorry, when you are beset with a problem, what do you do? Many people will worry and fret about the problem. This makes matters worse because the subconscious mind always magnifies what we impress upon it. Many liken the subconscious mind to a bank. You are constantly making deposits in this universal bank. Be sure you deposit seeds of peace, harmony, faith, and goodwill. This will be magnified a thousandfold. Then prosperity and good fortune will be your harvest. How do you find yourself reacting to the problems of the day and to your environment? If you react with anger, bitterness, criticism, and resentment, you are making these deposits in the bank within you. When you need strength, faith, and confidence, and you cannot draw them out because you have not placed these qualities in your bank. Begin now to deposit joy, love, peace, and good humor. Busy your mind with these things. Then the subconscious bank will give you compound interest. It will magnify exceedingly beyond your wildest dreams.
Yeah, so here we can just take a pause and listen and like just decode this beautiful paragraph that Dr. Joseph Murphy has written. He said आप जैसे परेशान होते हो, अब वो वरी वाले थॉट्स आपको आते जाते हैं, तो बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबकॉन्शियस माइंड ऐसे वर्क करता है. द मोमेंट यू हैव डिपॉजिटेड थॉट्स ऑफ वरी एंड एंजाइटी कि ये कैसे होगा, ये हो पाएगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या आउटकम होगा, पता नहीं मेडिकल रिपोर्ट्स कैसी आएंगी, पता नहीं वो वाला पैसा वहां से आएगा कि नहीं आएगा, इतने टाइम से पता नहीं वो कोर्ट केस रिलीज होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो वेदर like I'll be able to do this or not, I don't know whether I'm going to get a job, I don't know if my business is going to thrive, कौन क्लाइंट आएगा, कैसे आएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा. Now when your mind is cluttered like this with the worrying thoughts, according to the law of the subconscious mind, these will get amplified. ये जो सारे worrying thoughts है ना, ये बहुत जोर पकड़ लेंगे और आप इनका एविडेंस देखने लग जाओगे, और ज्यादा वरी वाली सिचुएशन आएगी, और ज्यादा ऐसी सिचुएशंस आने लग जाएंगी जो आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी देंगे. तो इसीलिए वो बोल रहे हैं इसमें कि वो मैग्नीफाई हो जाएगी. इसलिए जैसे ही आपको कोई वरिंग थॉट आया ना, आप सोचो कि आपको सीड्स डिपॉजिट करने हैं, और वो तो सेंटेंसेस भी नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं ये शब्द अपने दिमाग में, जैसे बिल्कुल पार्च्ड ग्राउंड होता है ना, बंजर जमीन, उसमें जब आप पानी डालते हो कितनी फट से चला जाता है नीचे, क्योंकि उसमें क्रैक्स हो रहे होते हैं. तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इज वेटिंग, बिकॉज लाइफ वर्ड होता है वो, एक्चुअली लाइफ वर्ड का मतलब होता है वो होप, प्रोग्रेस, विक्ट्री, फन, जॉय, लव, वो इन चीजों के लिए बना है. लेकिन हम उसमें क्या डाल रहे हैं, उल्टी पुल्टी चीजें, क्योंकि कॉन्शियस माइंड कैप्चर करता है, बहुत लॉजिकल होता है, तो वहां से हम गलत चीजें डाल रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड में. तो अब आप सोचो दैट वो बिल्कुल जैसे बंजर जमीन होती है, लाइक दैट ग्राउंड विच इज पार्च्ड ग्राउंड एब्सोल्युटली, एंड यू pouring the water of all these beautiful words: peace, harmony, faith, goodwill, love, joy, excitement, goodwill, humor, इस ये वर्ड्स डालो बस. जैसे मन परेशान हुआ, यही तो मैं आपको पिछले वाले उसमें बुक में भी ये बता रही थी कि खाली दिमाग जैसे ही होता है ना, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, आप बेशक ये बोलना शुरू कर दो. आप देखना आपका बीइंग चेंज होता जाएगा, और फिर दुनिया की कोई ताकत आपको परेशान नहीं कर पाएगी, बिकॉज आपको यू फील एम्पावर्ड, बिकॉज आपने बड़ी बड़ी मतलब चीजें ट्रांसफॉर्म कर ली अपनी लाइफ में, है ना. मतलब एविडेंस के रूप में तो ये आ जाता है, हर चीज का सबूत आपको यूनिवर्स देगा. अगर आप परेशान हुए हो और आप 5 मिनट के लिए आपने थैंक यू, आई लव यू, लव, पीस, जॉय, हार्मनी, लव, पीस, जॉय, हार्मनी, लव, पीस, जॉय, हार्मनी, बस यही चैंट कर रहे हो लाइक अ पैरट, ठीक है, आपको उसका एविडेंस मिलेगा, आपको सबूत मिलेगा. और जब सबूत मिलता है तो आपको एक एम्पावरमेंट आती है, अंदर से एक शक्ति आती है दैट यस दिस इज हाउ इट वर्क्स, और मैंने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया. कहते हैं ना, बी द मास्टर ऑफ योर माइंड. बॉडी उसकी सर्वेंट है, हम लोग बॉडी को मास्टर बना देते हैं, है ना. तो माइंड को मास्टर बनाओ. हमेशा कई लोग बोलते हैं, हैव टू लिसन टू माई बॉडी. नो, यू डोंट हैव टू लिसन टू योर बॉडी, यू हैव टू लिसन टू योर माइंड. माइंड विल ऑलवेज गाइड यू थ्रू. और वो भी कौन सा माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, नॉट द कॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड आपको बहुत ट्रिक करता है, सही नहीं रास्ता दिखाता कई बार, है ना, बिकॉज वो ग्रेविटेटेड है, बायस्ड है, उसको ये जजमेंट है, ये सही है, ये गलत है, वो करोगे तो ये हो जाएगा, बाहर वॉक करने जाओगे तो बहुत पोल्यूशन है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी. ये सब कॉन्शियस माइंड का काम है. सब कॉन्शियस माइंड आपको बोलेगा हवा को थैंक यू बोल बोल के जाओ, बाहर जाओ, सब सही रहेगा, सब ठीक रहेगा. देयर विल बी योर इम्यूनिटी, आपके सारे इम्यूनोग्लोबिन ए और बी बनेंगे ना बॉडी में, आप जाओ तो सही, है ना. पेड़ों को थैंक यू बोलना, ये बोलना. सबकॉन्शियस माइंड हमको अलग राय देता है, कॉन्शियस माइंड हमको अलग राय देता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड जजमेंट है, एनालिटिकल माइंड होता है वो. इट्स लाइक एन एआई दैट इज नॉट डीलिंग विद इमोशंस. एआई डजंट डील विद इमोशंस. इसलिए मुझे लगता है कि सब लोग बहुत थ्रेट में रहते हैं कि एआई आने के बाद जॉब चली जाएगी लोगों की, ये हो जाएगा. एआई अगर आ गया तो वो आपकी क्लासेस लेना शुरू कर देगा, तो जितने भी टीचर्स जो मैनुअल स्टडी करा रहे हैं उनका क्या होगा. अरे कुछ नहीं होता है. ह्यूमन टच, ह्यूमन इमोशंस की कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती है. इफ आई जस्ट कम एंड, अगर आपको लगातार एक वीडियो है जो बोल रहा है थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, and if I come and I just give you that warm hug and I look into your eyes and I say thank you, आपका नाम लेके, I really love you, it will be a huge difference. You can't get married to an AI or a robot.
right? Can you? No, because it lacks that human touch. It will do everything that the spouse will do. AI is capable of doing that. Okay, but would you still want to be married to an AI? No, right? You need that human touch. So human touch is not getting replaced anywhere. So there is no threat coming in from anyone when people says that AI is taken over the world and sweeping the world and it's making people lose the jobs and all that. Nothing to beat that warm hug. किसी का हाथ पकड़ के आप बोलो everything will be okay, and I'm there with you. I'm there always. Tell me, I believe in you. I know you can do it. That is something that you can conquer the world with that warm touch and that with these warm words. When someone looks at you, looking into your eye, that come on, everything will be okay. That even if the robot will say it maybe more forcefully using more powerful words, but you will not get the same feel that you will get when a human tells you, right? So conscious mind is an AI. Subconscious mind is that human touch. Okay. So whenever anything like that happens, anything wrong in life happens, small little things that start bothering you, you have to sow the seeds of love, peace, joy, harmony. एंड इसमें लिखा हुआ है दैट जो चीज आप बोलोगे ये 1000-fold मैग्नीफाई होगी. डॉक्टर जोसेफ मर्फी बोल रहे हैं तो ये सत्य वचन है. उन्होंने बोला बी श्योर यू डिपॉजिट सीड्स ऑफ पीस हार्मनी फेथ एंड गुडविल these will be magnified 1000-fold. Then prosperity and good fortune will be your harvest. आपकी किस्मत बदल जाएगी. लोग बोलेंगे वाओ यू सो लकी. Nobody is lucky. They make themselves lucky by their own energy when you shift your energy. प्रोस्पेरिटी चाहिए. हम सबको बेइंतहा पैसा चाहिए ताकि हम लोगों की मदद भी कर पाए जिनको जरूरत है. वाइल एट द सेम टाइम हम अच्छी अच्छी जगह पे प्रॉपर्टीज खरीद पाए जहां हम सब लोग जाके मजे करें. है ना. हम बहुत कुछ चाहते हैं जिंदगी में. हम पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं. नेचर जो भगवान ने बनाया वो इतना सुंदर है और हम चाहते हैं हम इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करें. है ना. हम फोकट का वर्ल्ड ट्रिप थोड़ी चाहते हैं. हम चाहते हैं कि हम होटल में जाके रहें, हम उनको पैसे दें, स्टाफ को खाना पीना प्रोस्पेरिटी भी तो मिल रही है जो स्टाफ है उस होटल का. तो हम तो चाहेंगे ना हम अच्छे होटल में जाके रहें. हम चाहेंगे कि हम हर जगह की व्हीकल लें, कैब्स लें, बिकॉज हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना वहां की भी इकोनॉमी को. ऐसे थोड़ी सोचना है मुझे सिर्फ हिंदुस्तान की करनी है, मुझे बाहर नहीं करनी है. अपने आप जब आप किसी कंट्री की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करोगे आपकी कंट्री की इकोनॉमी बहुत बढ़ेगी. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. इट इज अ विन विन सिचुएशन. तो यहाँ पे उन्होंने ये लगाएगा प्रॉस्पेरिटी चाहिए आपको जिंदगी में और गुड फॉर्चून चाहिए. गुड फॉर्चून इज किस्मत बदलना. ये आपका हार्वेस्ट होगा अगर आप ये सीड्स डिपॉजिट करोगे. पीस, हार्मनी, फेथ, गुडविल. है ना. अपने आप देखोगे कि वो सारी जो चीजें आप में जो नेगेटिव ट्रेड्स थे लाइक बिटरनेस, एंगर, क्रिटिसिज्म, रिजेंटमेंट, ये अगर आप बैंक में डिपॉजिट करना शुरू करो. तो उन्होंने बोला है कि सबकॉन्शियस माइंड एक बैंक की तरह है. तो उसमें जो डिपॉजिट करोगे वही तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलेगा. सिंपल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. कंपाउंड इंटरेस्ट वापस मिलता है. तो अगर आपने एंगर, हेट, क्रिटिसिज्म ये सब किया तो आपको वो सारी चीजें मिलेगी. है ना. सो इसीलिए नाउ बिगिन नाउ ये एक गाइडेंस है, ये एक फोर्स है जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने दिया. उनके थ्रू अब मैं दे रही हूं आपको. दैट बिगिन नाउ. नाउ मीन्स नाउ. इट डजंट मीन 1 hour later. Begin now to deposit joy, love, peace, and good humor. Busy your mind with these things. Then the subconscious bank will give you compound interest of these. ये मैग्निफाई होगा एक्सीडिंगली बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स. ठीक है. इतना ज्यादा मल्टीप्लाई होकर आपकी जिंदगी में आएगा. तो फालतू की चीजों में ध्यान देने से अच्छा है खाना भी बना रहे हैं, खाना सर्व कर रहे हैं तो हम बोलते रहे जॉय, लव, पीस, गुड ह्यूमर, जॉय, थैंक यू, आई लव यू, जॉय, लव, पीस, हार्मनी, अमेजिंग हेल्थ, रोबस्ट हेल्थ, हैप्पीनेस, cheer, joy, love, peace, cheer, good happiness, harmony, I love you, thank you. अगर ये हमारी चैंटिंग बन जाएगी तो ऑब्वियसली कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ साथ ये खूब मैग्नीफाई होगा एंड बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स. दिस इज व्हाट डॉक्टर मर्फी हैज रिटन. हाँ जी पल्लवी, when you have When you have what your turn a difficult decision to make, or when you fail to see the solution to your problem, begin at once to think
constructively about it. If you are fearful and worried, you are not really thinking. Real thought consists of contemplating whatsoever things are true, just, honest, lovely, and of good report. True thinking is free from fear. The real reason why you are fearful is because you have a false concept or you are taking a wrong view of things. Probably you believe that external things, conditions, and circumstances control you and that they are causative. Remember, you have dominion over your environment and conditions. Here is a simple technique which you can follow. Quiet the mind, still the body, tell the body to relax. It has to obey you. It has no violation, initiative, or intelligence of itself. It is an emotional disk which records your beliefs and impressions. Immobilize your attention, focus your thought on the solution to your problem. Try and solve it with your conscious mind. Think how happy you would be about the perfect solution. If your mind wanders, bring it back gently. In this sleepy, drowsy state, say quietly and positively, the answer is mine now. I know my subconscious mind knows the answer. Live now in the mood or feeling of the solution. Sense the feeling you'd have if the perfect answer were yours now. Let your mind play with this mood in a relaxed way. Then drop off to sleep. You may fall asleep sooner than you expected, but you were thinking about the answer. The time was not wasted. When you awaken and you do not have the answer, get busy about something else. Probably when you are preoccupied with something else, the answer will come into your mind like toast pops out of the toaster. Yeah, thank you, Pallavi. हम इतना ही पढ़ेंगे आज. Thank you so much and wish you both a very happy anniversary and may your life be full of joy, love, peace and harmony, always togetherness. Thank you, Happy ma'am. and Thank you healthy so together. much. Happy and healthy togetherness. Thank you so much, ma'am. Love you. Thank you. Love you, Pallavi. So about this. Now, Dr. Joseph Murphy is giving a technique. वो कह रहे हैं कि अगर आपको इनर गाइडेंस सिस्टम से अगर आपके दिमाग में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, आपको कुछ पूछना है, किसी चीज़ का जवाब चाहिए, अगर आपको ये भी पूछना है कि मैं अपने घर में कैसे हार्मनी लेके आऊँ, व्हाट इज इट दैट आई नीड टू डू टू ब्रिंग हार्मनी इनटू माय हाउस, मैं अपने घर में कैसे लव पीस, मैं कैसे अपनी इनकम को इतना कर लूं. सपोज आपको ये है बहुत स्ट्रांगली कि आई वांट टू रिसीव लाइक 10 lakhs कॉन्स्टेंटली एवरी मंथ, मिनिमम 10 lakhs एवरी मंथ, है ना. सपोज ये किसी का भी कुछ भी हो सकता है, कोई 1 or 2 भी, जो आपको बिलीवेबल लगता है आपको कीजिए. तो अगर आपको ये भी पूछना है ना क्वेश्चन, तो आप अपने सबकॉन्शियस से पूछो. ठीक है, इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग एंड थिंकिंग एंड एनालाइजिंग एंड दिस एंड दैट, यू विल नेवर गेट द आंसर जस्ट विद द कॉन्शियस माइंड, बिकॉज सबकॉन्शियस नोज द आंसर्स. तो उन्होंने ये टेक्निक बताई है कि अगर आपको कुछ पूछना है, सपोज कोई चीज आपको बॉदर कर रही है, तो आप स्लीपी ड्राउजी स्टेट में, या रात में सोने के पहले वैसे भी हम स्लीपी ड्राउजी स्टेट में जाते हैं, है ना, वैसे ही रहते हैं. जस्ट ब्रीद इन बहुत क्वाइटली, बहुत पॉजिटिवली विद अ स्माइल ऑन योर फेस, है ना. फिर आप बोलो द आंसर इज माइंड नाउ, आई नो माई सबकॉन्शियस माइंड नोज द आंसर, है ना, to this whatever situation, that how can I start receiving 10 lakhs rupees every month consistently.
अगर आपने ये भी क्वेश्चन पूछ लिया या जो भी और कुछ सवाल करना है आपको वो पूछना है। नाउ अब आप उसके एंटिसिपेशन में और करेक्ट आंसर जो आपको मिला है उस जॉय में आप बस सो जाओ। ठीक है, लेट योर माइंड डू इट्स वर्क एंड यू ड्रॉप ऑफ टू स्लीप। सुबह जब आप उठोगे उस क्वेश्चन के बारे में मत सोचना कि आपने ही पूछा था ये। जस्ट गेट बिजी विद द नॉर्मल मंडेन थिंग्स जो आप करते हो। सुबह ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मेडिटेट करना है वो करो, आपको जो करना है वो करो। तो आप उस वाली स्टेट में चले जाओ, अपना नॉर्मल काम करो, है ना, उसके बारे में मत सोचो। अपने आप जब आपको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे आपको वो आंसर पॉप इन हो जाएगा। एज इफ इसमें लिखा है जैसे टोस्टर से टोस्ट निकलता है ना, पॉप आउट करता है, वैसे आपको वो आंसर मिल जाएगा। बट उन्होंने नेक्स्ट पैराग्राफ में जो हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमारे पास टाइम नहीं है, बट कल हम पढ़ेंगे, तो उन्होंने ये भी बोला है कि उस चीज जिसका आपने सवाल पूछा है ना, जो सवाल पूछा है उसके बारे में ना वरिंग एनर्जी मत देना। मतलब डोंट थिंक दैट थिंग्स आर गेटिंग वर्स, अब क्या होगा, अब क्या होगा, पता नहीं मुझे जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा है, मुझे कोई तरीका नहीं दिख रहा, आई सी नो वे आउट, इट इज होपलेस, ये सब जो लिखा हुआ है इस पे, ये सब नहीं सोचना। आपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछा है ना, इसमें देखा है ना आपने, लव, फेथ, गुडविल, फेथ वर्ड था। फेथ का मतलब होता है बिलीव, भरोसा। भरोसे का मतलब होता है कि मैंने आपको सरेंडर कर दिया और मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे इस चीज का बेस्ट रेजोल्यूशन दोगे, है ना। दैट इज वॉट इट मीन्स फेथ। इसमें फेथ, गुड रिपोर्ट, लव, पीस, हार्मनी, फेथ, गुड रिपोर्ट, लव, पीस, हार्मनी, फेथ, गुड रिपोर्ट, ये लिखा हुआ है। तो फेथ का मतलब ये होता है कि मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पता है कि इसका मेरे पास बहुत परफेक्ट हल निकलेगा, रेजोल्यूशन आएगा। एंड दैट इज वॉट इट मीन्स हियर। ठीक है, और अपने आप तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है, बिकॉज हम अपने इनर गाइडेंस या अंदर के जीपीएस से पूछें कि मुझे जिंदगी में नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है और मैं लूं कि नहीं लूं, या मतलब लेना भी है, अगर मुझे कुछ और चाहिए तो वो क्या और चीज है। ये सारे इन सब सवालों के जवाब अंदर होते हैं। तो ये जो परस्यूट है, जो हम जिस प्रैक्टिसेस पे, जिन कदमों पे हम चल रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसमें हमारा कनेक्शन हमारे आप से, अपने आप से स्टैब्लिश करने की जर्नी है ये। और अगर आपके आउटर वर्ल्ड में आपको लग रहा है ऑलरेडी ये सारे चेंजेस होने लग गए हैं, सो दैट्स ओनली हैपनिंग बिकॉज आप अपने आप से कनेक्टेड होते जा रहे हो, है ना। और जब अपने आप से कनेक्टेड हो जाते हो, उसी को बोलते हैं सेल्फ लव। तब आपको खुशी के लिए, फन के लिए, जॉय के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान क्रिएट करते हैं आपके लिए ऐसे मोमेंट्स, ऐसे ब्यूटीफुल क्रेजी थिंग्स, एंड यू विल रियली लव एंजॉय, you'll revel in that, you'll bask in that glory like in the sun. It's so beautiful, है ना। So this is the pursuit that we are in, and we have to only get better with time if we really diligently follow all these practices. So that's what we have today for our session. Thank you so much, everybody, for listening so intently. And Priya, Poonam, Anu, Bharti, Priyanka, Meena, everybody for your huge support. Unnati for posting who's reading, who's not reading. Priyanka early in the morning will give. So it's such a wonderful team effort that universe has conjured up together, who have a huge mission in life. Yeah, so all of you here, we are 100 and something right now, and so many on the YouTube, so many will listen later, so many started at 6:30, they will end late, so many divide the session in अलग अलग टुकड़ों में पूरे दिन भर जैसे जैसे टाइम मिलता है सुनते हैं। इतने प्यारे प्यारे आप लोग हो, मतलब और क्या चाहिए। और इतना सारा इस वर्ड को स्प्रेड कर रहे हो, कई स्टेटस लगा रहे हैं, कई लोग किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सेशंस में, कई लोग लाइक इन योर ओन वे आप अपने वर्क प्लेस में इस लॉ को अप्लाई कर रहे हो और आप डिफरेंस ला रहे हो अपने, you're taking this to your friends, family, children, everywhere, अपने बच्चों को ग्रेटिट्यूड सिखा, इन योर ओन वे यू वर्क इन दैट, you're making your own life beautiful. ये भी बहुत बड़ी नियामत है दैट आप अपनी जिंदगी में अप्लाई कर रहे हो। सो थैंक यू फॉर ऑल दी एफर्ट्स। तो मुझे सब कुछ सफल होता हुआ मतलब ऐसे लगता है दैट इट इज ऑल वर्थ, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि कई बार मेरे साथ भी तो ऐसा होता है ना, आई एम लाइक अ नॉर्मल वेरी ह्यूमन। कभी होता है रात को नींद टूट गई 2 बजे, सुबह 4 बजे नींद आई है और 15 मिनट के बाद अलार्म बज जाता है कि उठना है। कभी ऐसे कुछ होता है, कभी कभी तबीयत बेस्ट नहीं होती, भाई 365 days इन अ ईयर हम ये करते हैं, है ना। तो कभी ऐसा होता है कि तबीयत नहीं, बेस्ट हेल्थ में आप नहीं होते हो, बट आई एम डूइंग द सेशंस एट 6। कभी कुछ दिमाग में चल रहा होता है बट डूइंग द सेशंस एट 6।
तो मुझे लगता है कि जो सारी सारा वो जो ब्यूटीफुल एफर्ट है वो सारा कामयाब हो जाता है जब आप लोगों की जिंदगी बदलती है और जब आप अप्लाई करते हो। इसीलिए जब मैं किसी को सफर होता हुआ देखती हूँ और वो प्रैक्टिसेस नहीं करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे लगता है कि मेरी सारी मेहनत फेल कर दी, मतलब जो जो मैंने किया, बिकॉज रिजल्ट आना पहले दिन से, लॉ ऑफ यूनिवर्स के हिसाब से टाइम और स्पेस नहीं है रिजल्ट आने में। टाइम एंड स्पेस हमारे माइंड में होता है, तो वो माइंड को क्लियर करना, जैसे आज हमको डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने सिखाया है, बस चांट करो लव, पीस, हैप्पीनेस, हार्मनी, ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, लॉट ऑफ मनी, रोबस्ट हेल्थ, लॉट ऑफ हैप्पीनेस, ब्यूटीफुल वेदर, क्लीन एयर, ये सारी चीजें कर करके ये सारी चीजों को सोचते रहो। तो इसको बोलते हैं बीइंग सोल्यूशन ओरिएंटेड एंड ब्रिंग ग्रोथ, हैविंग अ ग्रोथ माइंडसेट, है ना? नहीं तो फिक्सेटेड माइंडसेट होता है, दैट्स नो गुड। ग्रोथ माइंडसेट बहुत जरूरी होता है। कॉन्स्टेंटली चैंटिंग लव, हैप्पीनेस, जॉय, पीस, हार्मनी, प्रोस्पेरिटी, अमेजिंग हेल्थ, रोबस्ट हेल्थ, लॉट ऑफ एनर्जी, अमेजिंग थिंग्स, मैजिक्स, मिरेकल्स, ब्यूटिफुल सनशाइन, बस यही करते रहो। इस करने में क्या जा रहा है, कोई आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं, है ना? बट ये रिफॉर्म जब होना शुरू हो जाएगा तो इट इज अ वेरी पावरफुल रेफॉर्मेशन। सो इनकी एनर्जी एग्ज्यूट होती है, हमारी जिंदगी से निकलती है, रेडिएट आउट होती है, तो वो मैग्नीफाई कितना 1000 फोल्ड बोला डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने, मैं तो हुक्ड हो गई हूँ उस वर्ड से, दैट सारी अच्छी एनर्जी मेरी जिंदगी से निकल रही है और वो 1000 फोल्ड मल्टीप्लाई होके आ रही है और फिर मिरेकल्स होंगे जिंदगी में, ऐसा उन्होंने बोला है आज, है ना? So we better believe it, because in all faith, goodwill, and good cheer, with huge respect to Dr. Joseph Murphy and Rhonda Byrne for teaching us such amazing things, and only with the intention of improving our life. Why would he even do it otherwise? I know. So that is how it is. So thank you so much.